मैच में तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि फिर हारेंगे बुरी तरह से, क्योंकि बहुत फर्क है दोनों टीमों में. पहले तो हैविंग सेड दैट देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू टीम्स, सो आई डोंट थिंक सो दैट that lightning will strike today and India should win, because man to man we are better, tactics we are better, we are in a better frame of mind in spite of the backdrop. But Pakistan could have saved all this trouble, वो ये बचा सकते थे. अपनी कोई बेइज्जती हुई है इतनी उनकी. अगर आपने हाथ नहीं मिलाया था, आप हार गए थे, आप चुपचाप अगले मैच की तैयारी करते, आप सोचते कि हमने जीत के ही अपना जवाब देना है. पर ये जो पूरा उन्होंने बनाया माहौल, तो वो क्या हुआ कि वो खिसियानी बिल्ले ने खंबा नोचा और बेइज्जती होगी, क्योंकि जो करना चाह रहे थे वो नहीं, तो दिमाग लगाया नहीं. पहले तो गलत आदमी के पीछे भागे, क्योंकि ये समझ आनी चाहिए थी कि मैच रेफरी को आपने एक बना दिया कि मैसेंजर को उड़ा देंगे, मैसेज को नहीं दिया उन्होंने. तो अब वो आईसीसी होने वाले देने नहीं थी. फिर आपने वो वीडियो लीक कर दिया, फिर आपने पहले मुंह सुझा लिया कि हम आएंगे नहीं, 1 घंटा लेट किया. तो मतलब कि ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो वाला हाल किया इन्होंने. तो अब फिर आके खेलना ही पड़ रहा है. तो ये 3-4 चीज़ें ना करते, ठीक है, ह्यूमन क्राई ना बचाते, तो उसके बीच में क्या होता है, चलिए बोलते ठीक है हाथ नहीं मिलाया, हम भी नहीं मिलाएंगे, हम मैच खेलेंगे, हम भी ऐसे ही खेलेंगे एटीट्यूड में. हम सोच रहे थे कि यारी दोस्ती होने वाली है, वो इंडिया ने बता दिया कि नहीं करने वाले, तो ठीक है हम भी ऐसे करेंगे. अब आपने पहले वो अपना फिर मुसीबत अपने लिए डाल ली और अपने खिलाड़ियों पे और प्रेशर आ गया. क्योंकि अब क्या है कि हमको मैच में अगर फिर हार गए और ये करने के बावजूद अगला मैच खेलने पड़ रहा है, तो मतलब ये सोचिए कि फिर क्या करेंगे. तो इससे मुझे लगता है कि आई थिंक इट वॉज कहते हैं ब्रेन फेड फ्रॉम द होल एस्टेब्लिशमेंट इन पाकिस्तान. दे शुड हैव सीन, दे डिडंट सी द गेम थ्रू. उन्होंने एंड गेम देखी नहीं, वो चल पड़े कि उसकी किसी ने बोला कि चोर तुम्हारी टोपी लेके भाग गया, वो चोर के पीछे भागना शुरू कर दिया. ये देखा नहीं कि टोपी सिर पे ही है. तो इसलिए मुझे लगता है कि नाउ मैच से ज़्यादा बात हम कर रहे हैं व्हाट हैज़ बीन सराउंडिंग द होल इवेंट एंड ऑल दैट. सो आई थिंक क्रिकेटिंग सेंस से मुझे लगता नहीं कि पाकिस्तान जीतेगी. इंडिया इज़ फार टू गुड, and he said that cricket is not that important in this kind of scenario anyway. Now I think and I must at this point also admit that after not acknowledging them, not shaking hands with them, not smiling at them, we made our point. But then Surya going to the press conference and bringing up Pahalgam, I think that was actually, and that was probably for optics. He thought that because of the anti-match feeling, anti-Pakistan feeling, he was obliged to do that. But we could have taken the higher moral ground and we should have ignored it because we made our point. We didn't shake hands with them because it was because of Pahalgam. But by opening and using that platform and politicizing, and which is a clear violation of the code of conduct. By not shaking hands, there is no violation because it is within my rights. By going to that platform and politicizing it, I think that is a mistake. And for that, India will be penalized, but Pakistan will be penalized for all the things they have done ever since that game. Well, you just talked about Pakistan team did all the things that could have been avoided and the controversies that could have been avoided. But do you think that there is a reason behind this is that there is problem in their batting lineup, there is problem in their bowling lineup. So just to take the moment, take the eyeballs ahead somewhere else, they did that because they knew that if there will be some other talking point, then the problem will not be raised, the question will not be raised on their performances. How will not be raised? The question will be raised because you will have to go to the ground and play. If you have decided to use this as an excuse not to play the next game, then you stayed, you showed that you were angry, but you came back to play. So either stick to the guns, because I think they didn't see and forecast or didn't see in the future that how much penalty they'll have to give. So नाराज होकर चले गए कि उनको लगा कि ये बहाना बना के शायद अगला मैच हम चलिए छोड़ के जा रहे हैं. पर छोड़ के जाने भी नहीं सकते हो. अगर छोड़ के जाओगे तो पाकिस्तान क्रिकेट जुर्माना भरते भरते मर जाएगी और पाकिस्तानी क्रिकेट वैसे ही मर जाएगी. ये सोचा ही नहीं उन्होंने. फिर आके दोबारा खेलना पड़ रहा है. तो पॉइंट तो वहीं आ गया कि भैया तेल तो तिलों से निकलेगा, खेलना तो पड़ेगा ही. सर ऑल्सो हम थोड़ा सा अगर भारत परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, अभिषेक शर्मा हैव बीन द कंसिस्टेंट परफॉर्मर थ्रू आउट. जरूर वो बहुत बड़े 70-80 रन नहीं आ रहे हैं, लेकिन शायद उनकी जरूरत भी नहीं पड़ रही क्योंकि जिस तरीके का वो स्टार्ट दे रहे हैं. तो डू यू थिंक दैट हिज कंसिस्टेंसी इज व्हाट मेकिंग द डिफरेंस इन दिस होल टीम? Not really. What are you talking about? I think Abhishek Verma has given the India the start. He has done his job, and the bigger scores, will come. But once in a while, you give the start, your team wins, and that's the end of it. So we should not even analyze talking about individual plays at this point, because number 8 तक अक्षर पटेल है हमारा. तो मेरे को चिंता नहीं है. किसी न किसी के रन आएंगे, किसी के नहीं भी आए. अब सूर्य कुमार यादव ने 47 किए थे पहले मैच में, तो हमें अच्छा स्टार्ट मिला, उसके बेसिस पर हमने कर दिए. पर अभी ये पता लग गया कि इस बार एशिया कप में बड़े रन नहीं बन रहे. वो विकेट जो है थोड़ा सा गेम को स्लो कर रहा है, स्पिनर्स को थोड़ा सा टर्न है,
और अब देखिए हमारे पास इतनी मैच्योरिटी और डेप्थ है कि हमने अर्शदीप को पूरे मैचेस नहीं खिला रहे हम, तो वी आर प्लेइंग हॉर्सेस फॉर कोर्सेज एंड आई थिंक ऑल द बैट्समैन would have understood by now that these are not belters and this is not a 220-230 pitch. So I think if you aim for 175, then or don't aim for 200 because कई बार आप 200 का एम करने जाते हैं ना तो आप 125 पे आउट हो जाएंगे. तो आप पेस हम करें, अगर अच्छा स्टार्ट मिल गया तो you can keep on as you go along. Don't plan too far ahead. Sir, also you just took the name of the first ever Indian bowler to take 100 T20 high wickets. So is it safe to say that after Bumrah he's our best pacer, though he's not getting those many opportunities? See, he's proven himself because he's number one rated bowler in T20 in world cricket. He did well in World Cup. So he has done wherever he's got the chance. I want to see this progress and Arshdeep going to play test cricket for India. I think that is the normal thing and a growth I would like to see. He's consistent. He's got this quality about him. And I think after Bumrah you can say, but we've got a good pack of bowlers. So I will never see a player in his सिर्फ उसी को नहीं देखूंगा मैं. आप देखो पूरा मेरे पास ये है, उसकी बेंच स्ट्रेंथ क्या है, जो लड़के तैयार हो रहे हैं वो कैसे हैं. तो आई सी द होल गेम इन अ टोटलिटी. सर लास्ट क्वेश्चन दैट इतना कुछ हुआ है अब पिछले कुछ वीक हफ्तों में, क्या इंडियन टीम के ऊपर भी क्या है वो एक्स्ट्रा प्रेशर रहेगा क्योंकि पॉलिटिक्स की वजह से, या फिर अगेन हम एक और वन साइडेड विक्ट्री देख रहे हैं, या फिर एक T20 क्रिकेट वाला भी फैक्टर क्योंकि बहुत अनप्रेडिक्टेबल फॉर्मेट है, एक दो ओवर इधर उधर आपको गेम पलट सकते हैं, तो क्या वो प्रेशर भी प्ले करेगा? देखिए आपने 2-3 क्वेश्चन एक ही में पूछ लिए. मुझे लगता है कि T20 का फैक्टर तो है कि यहाँ पे कभी भी हल्की टीम भारी पड़ सकती है क्योंकि हर टीम में एक दो प्लेयर तो अच्छे होते ही हैं. अगर वो उन दोनों प्लेयरों का 2-3 प्लेयरों का दिन हुआ तो वो T20 ओवर का पूरा फेज वही निकाल के ले जाते हैं. पर लंबे मैच में क्या होता है, अच्छी टीम वापस आती रहती है, उनके पास डेप्थ होती है. बट ये मैच का रिजल्ट जो है पॉलिटिसाइज हो गया है. प्रेशर की बात की आपने, तो इंडियन टीम के पास अब प्रेशर नहीं है क्योंकि यू आर डूइंग वेल. सो यू आर जस्ट फॉलोइंग द प्रोसेस, एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ एंड लेटिंग द थिंग्स टेक केयर ऑफ इट सेल्फ. आई थिंक ये मैच्योरिटी जो है, ये टीम्स क्या होती हैं, कई बार लगता है ना थोड़ा डाउट होता है तो वो हाइपर हो जाती हैं. जैसे पाकिस्तान इस समय उन्हें समझ नहीं आ रहा, वो टॉस जीतते हैं, वो उनकी सेंसिबिलिटी, उनकी मेंटालिटी पता लगती है कि क्या चूज़ कर रहे हैं. उनके प्लेयर जैसे से अप्रोच कर रहे हैं, उठे हुए हैं, उनकी पूरे खुद की पाकिस्तान की प्रेस फॉर्मर प्लेयर्स ऐसी तैसी कर रहे हैं सिलेक्शन की. ठीक है, तो समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा. तो थोड़ा तरस भी आता है. पर अब क्या है कि थोड़ा तरस आने से ज़्यादा मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने इतना कुछ हमें बेजार कर दिया है कि ठीक है अब तरस नहीं आ रहा. ठीक है, अच्छा लग रहा है कि जब थोड़ी उनकी मिजरी में अब मुझे ठीक लग रहा है. मैच में तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं क्योंकि फिर हारेंगे बुरी तरह से, क्योंकि बहुत फ़र्क है दोनों टीमों में. पहले तो हैविंग सेड दैट देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू टीम्स. सो आई डोंट थिंक सो दैट कि दैट लाइटनिंग विल स्ट्राइक टुडे एंड इंडिया शुड विन बिकॉज मैन टू मैन वी आर बेटर, टैक्टिक्स वी आर बेटर, वी आर इन बेटर फ्रेम ऑफ माइंड in spite of the backdrop. But Pakistan could have saved all this trouble. वो ये बचा सकते थे. अपनी कोई बेइज्जती हुई है इतनी उनकी. अगर आपने हाथ नहीं मिलाया था, आप हार गए थे, आप चुपचाप अगले मैच की तैयारी करते, आप सोचते कि हमने जीत के ही अपना जवाब देना है. पर ये जो पूरा उन्होंने बनाया माहौल, तो वो क्या हुआ कि वो खिसियानी बिल्ले ने खंबा नोचा और बेइज्जती होगी क्योंकि जो करना चाह रहे थे वो नहीं, तो दिमाग लगाया नहीं. पहले तो गलत आदमी के पीछे भागे क्योंकि ये समझ आनी चाहिए थी कि मैच रेफरी को आपने एक बना दिया कि मैसेंजर को उड़ा देंगे, मैसेज को नहीं दिया उन्होंने. तो अब वो आईसीसी होने वाले देने नहीं थी. फिर आपने वो वीडियो लीक कर दिया, फिर आपने पहले मुंह सुझा लिया कि हम आएंगे नहीं, 1 घंटा लेट किया. तो मतलब कि ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो वाला हाल किया इन्होंने.